Om Jnanadhivanasya Jnanandana Salakthaya Chaksurvalitam Nena Tasmai Sri Gurave Namaha. Namam Vishnupadaya Krishnapesvaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine. Namaste Saraswati Deve Bhagavani Vajahine Devi Heza Sundavani Ajata Desatani Shri Krishna Chaitanya Nityananda Shri Advaita Salakha Sivasavila Tatavinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Bhakti Vatsana Pangolanvaya Chayan Yatri Pata Mahanmane Sri Guru Harinam Paramahananda Bhagavam Sri Chaitanya Swaram. It's very wonderful for me the Punjabi Bagh temple again. इस पंजाबी बाग मंदिर में एक बार फिर आकर मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है. Every time I come, it's further developed. हर बार मैं आता हूँ और इसका और अधिक विकास हो जाता है. I joined in 1968. मैं संस्था से 1968 में जुड़ा था. I was in the university since 1966. मैं विश्वविद्यालय में 1966 से था. So he said hi, so I was already in the university. तो मैं हाई स्कूल के बाद में सीधा यूनिवर्सिटी में था उस समय पर. What is true, I heard a lecture which spoke on the life of Buddha. ये बात सच है कि मैंने बुद्ध के जीवन पर एक लेक्चर सुना था. And that had a big effect on me. और उसका मुझ पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था. When I wanted to meet the Guru, so I went to Canada and met A.C. Bhaktivedanta Swami. तो जब मैं गुरु से मिलना चाहता था उस समय मेरी भेंट A.C. भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद से हुई.
And Prabhupada had asked me what I wanted to do, what I was planning to do. और प्रभुपाद ने मुझसे पूछा था कि मैं क्या करना चाहता हूँ, मेरा क्या करने की योजना है. So I mentioned that I would like, and I was planning to go to India. तो मैंने उन्हें बताया कि मैं ये योजना बना रहा था कि मैं भारत जाऊं. And Prabhupada looked at me और प्रभुपाद ने मुझे देखा and he said, और उन्होंने कहा, I'll send you to India मैं तुम्हें भारत भेजूंगा. after some years. लेकिन संन्यास के बाद में, कुछ सालों के बाद में, I'll train you first and I'll send you. पहले मैं तुम्हें शिक्षा दूंगा, ट्रेनिंग दूंगा, उसके बाद मैं तुम्हें भेजूंगा. When I was in India, I got sannyas ashram. जब मैं भारत में आया, फिर मुझे संन्यास आश्रम मिला. In Montreal, I was a new devotee at that time. मॉन्ट्रियल में उस समय मैं एक नया भक्त था. There was also another devotee there. वहाँ पर एक और भक्त भी था. His name was Gopal Krishna. उनका नाम गोपाल कृष्ण था. He was very serious. वो बहुत गंभीर थे. He would chant in front of every photo. तो महाराज हर तस्वीर के सामने खड़े होकर जप किया करते थे. उसके बाद वो उन्हें प्रणाम किया करते थे. Move to the next photo. अगली फोटो पे जाते थे. Now he worships the deities. अब वो विग्रह, श्री विग्रह की सेवा करते हैं. He has his Shaligram Shilas. उनके अपनी शालिग्राम शिलाएं हैं. And he manages affairs in West and North India. और वो उत्तर तथा पश्चिम भारत का सारा कार्यभार संभालते हैं. So somehow we have grown to be long-standing friends. तो कुछ करके हम दोनों बहुत लंबे समय से हमारी मित्रता चली आ रही है. So when I came to Punjabi Bagh many times, तो मैं जब पहली बार पंजाबी बाग आया, that time the temple was in a house. तो उस समय जो मंदिर था वो एक घर में था. And deities were in the garage. और जो श्री विग्रह थे वो गराज में थे. Radhikaram. They still call that? So here is a beautiful temple. और यहाँ पर एक बहुत सुंदर मंदिर है. Much better suited. काफी उपयुक्त है. Not like the garage. गराज की तरह नहीं है. So all the ways to the devotees. तो इसका पूरा श्रेय सभी भक्तों को जाता है. We also appreciate how every year the Punjabi Bagh Temple excels in book distribution. और हम इसकी भी भूरी भूरी सराहना करते हैं कि हर वर्ष किस तरह से पंजाबी बाग मंदिर निरंतर तेजी से बुक डिस्ट्रीब्यूशन में आगे बढ़ रहा है. This is also a great achievement. ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है.
So our Acharya have sung तो हमारे आचार्यों ने गाया है Grihe Thako Bane Thako Sadaha Hari Bole Thako. ग्रहे ठाको बने ठाको सदा हरि बोले डाको। Now whether you're in a renounced ashram, तो चाहे आप संन्यास आश्रम में हो, that could be brahmachari, vanaprastha or sannyas. तो वो ब्रह्मचारी हो सकता है, वानप्रस्थ हो सकता है या संन्यास हो सकता है, Or whether you're a grihastha, और फिर चाहे आप गृहस्थ हो, that could be a grihastha. वो एक गृहस्थ भक्त हो सकता है। Everyone should chant the Hare Krishna mantra. हर किसी को हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। I said there are many sadhanas. There are many मैं देखता different हूँ कि yogas. काफी अलग अलग तरह की साधनाएं हैं, Many different yogas. अलग अलग योग की पद्धतियां हैं। All the yogas, Bhakti Yoga is the most direct. तो इन सभी योग पद्धतियों में जो भक्ति योग है वो सबसे सटीक है। And Bhakti Yoga, the one service that the devotees do, even in the presence of the Lord, तो भक्ति योग में एक जो सेवा है जो कि भक्त करते हैं भगवान की उपस्थिति के बावजूद भी, is chanting and hearing His holy names. वो सेवा है भगवान के परम नामों का सुनना और उनका कीर्तन करना। In the say once remembering the Lord, if He is present, then you'll observe Him directly. The 9 practices of bhakti. भक्ति के 9 विधि है। So one is remembering. उनमें से एक है याद स्मरण। So, but in time, if you see the Lord, you will observe Him. In Smaran, if you see the Lord, तो हालांकि आप भगवान को देखते हैं और आपको स्मरण भी होता है, you don't close your eyes and think you watch the Lord is there. आप अपनी आंखें बंद नहीं करते हो, आप अपनी आंखें खोल कर देखते हो कि भगवान आपके समक्ष हैं। And you don't do daily worship if the Lord comes. और अगर भगवान स्वयं प्रकट हो जाएं तो आप विग्रह सेवा नहीं कर पाएंगे। But if the Lord is present, you may still chant His holy name. लेकिन यदि भगवान आपके समक्ष उपस्थित हो तो तब भी आप उनके परम नामों का उच्चारण कर सकते हैं। Even Yasoda, while she was churning butter, जब यशोदा माई मक्खन बिलो रही थी, she would chant the names of Krishna. वो भगवान कृष्ण के नामों का जप करती थी। Gopala Krishna, गोपाल कृष्णा कृष्णा। and the gopis, they would also chant even in the presence of Krishna. और इसी तरह गोपीज भी कृष्ण की उपस्थिति में भी भगवान के नामों को लेती थी। Hare Krishna, Krishna कृष्णा Krishna, हरे हरे, Hare Ram, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। So it's very important
that everyone chants the holy names. तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हर कोई भगवान के नाम का जप करे, And by chanting these holy names, one can experience the presence of Krishna. और इन पवित्र नामों का जप करने से व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति का अनुभव कर सकता है। And that supreme bliss, और वह परम आनंद, then they can be fully absorbed in Krishna. और इस तरह से वो पूरी तरह से भगवान में नियोजित हो सकते हैं। So whether one is a grihastha, whether one is a vairagi, तो चाहे कोई गृहस्थ हो या वैरागी हो, everyone just chant the holy names. हर किसी को भगवान के शुद्ध नामों का जप करना चाहिए। And this chanting doesn't know any hard or fast rules. और ये जो जप की प्रक्रिया है, इसमें देश काल परिस्थिति का कोई नियम नहीं है। There's 3 standards of chanting. 3 स्तर है जप करने के: Offensive, अपराध युक्त, clearing, नामाभास, and pure chanting. शुद्ध नाम। Now, even if one chants offensively, अगर कोई अपराध युक्त भी जप करता है, they still go to the heavenly planets. तब भी वो उच्च लोगों को प्राप्त होते हैं। And if they chant accidentally or यदि वो अकस्मात भी नाम लेते हैं, meaning something else, हालांकि उनका तात्पर्य कुछ और होता है, like Ajamil, जैसे कि अजामिल, he named his son Narayana, उन्होंने अपने लड़के का नाम नारायण रखा, so he would call his son, तो वो अपने लड़के को बुला रहे थे, "Hey Narayana, come here, हे नारायण इधर आओ, sit on that, यहाँ मेरी गोदी में, Narayana, नारायण take prasadati, मेरे साथ प्रसाद लो, hey Narayana, हे नारायण let's go for a walk, चलो घूमने चलते हैं, hey Narayana, हे नारायण come on." चलो आओ। So he was chanting Narayana, 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 तो इस तरह वो जप कर रहे थे, नारायण नारायण नारायण। and when he was dying, और जब वो मर रहे थे, Yamadutta came, यमदूत आए ready to take him out. उनको लेने के लिए। He called his son, उन्होंने अपने सन "Hey Narayana, हे नारायण, Narayana, Narayana, go here, Narayana." नारायण इधर आओ। And because he called Narayana, और चूंकि उन्होंने नारायण को बुलाया, even though he meant his son, हालांकि उनका तात्पर्य अपने पुत्र से था, Vishnuduttas came विष्णुदूत आ गए and they said, "We're taking him. We're taking him." और उन्होंने कहा कि हम इसे लेके जा रहे हैं। And the Yamaduttas, they said, "No, no, यमदूतों ने कहा नहीं नहीं, he's a sinner, ये एक पापी है, he's a dacoit, ये एक डाकू है, he's a thief, ये एक चोर है, we're taking him." हम इसे लेके जाएंगे। No, नो, he chanted the name Narayana, विष्णुदूतों ने कहा नहीं, इसने नारायण का नाम जपा है, he's going with us. ये हमारे साथ जाएगा। Guess who won? अब आप बताइए कौन जीता? Vishnudutta. विष्णुदूत जीते। There was one lady, एक महिला थी, she was fairly young. वो काफी युवा अवस्था में थी, She was like 36. वो करीब 36 साल की उम्र की थी। Her husband had died of some disease. उनके पति की किसी बीमारी के कारण मृत्यु हो गई थी, But she was a bit lusty. लेकिन वो थोड़ी सी कामुक स्वभाव की थी, So she would entertain different men. तो वो अलग अलग युवकों के संपर्क में आने का प्रयास करती। So the father-in-law
तो उनके ससुर ने he said, listen, उन्होंने कहा सुनिए, it's your life, ये आपका जीवन है, but I have unmarried daughters. लेकिन मेरे कुछ पुत्रियां हैं जिनका अभी विवाह नहीं हुआ है, So if you act like this, they'll think my daughters are like that. तो अगर आप ऐसा व्यवहार करेंगी तो लोग सब सोचेंगे कि मेरी पुत्रियों का भी ऐसा ही चरित्र है। So then, better you live separate. तो अच्छा होगा कि आप अलग रहें, Otherwise, you follow a very chaste life. नहीं You तो stay here. अगर आपको यहाँ रहना है तो आपको एक शुद्ध चरित्र के साथ जीवन निर्वाह करना होगा। So she lived separate, तो वो अलग रहने लगी and she had a parrot, और उनके पास एक तोता था, and the parrot would chant Ram Nam, और वो तोता राम राम बोलता था, Ram 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 Ram. राम 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 राम। So she would chant with a parrot, तो वो भी तोते के साथ जपती, Ram Ram राम राम 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 Ram राम राम Ram राम राम। She actually developed some attachment to chant the name of Ram. धीरे धीरे उसके अंदर आसक्ति हो गई भगवान श्री राम का नाम जपने में। And one day, और एक दिन a lightning hit her house. A lightning hit her उनके house. घर में एक बिजली कड़की और गिरी ऊपर, And she died and the parrot died. तो उसकी मृत्यु हो गई और तोता भी मर गया। So then the Yamadutas came to take her तो यमदूत आए उसे लेने के लिए, because she was doing some sins. क्योंकि वो कुछ पाप कर रही थी। But the Vishuddhas were also coming. और विष्णुदूत भी वहां पर आ रहे थे, And they saw the Yamadutas ahead of them. और उन्होंने देखा कि यमदूत उसे ले जा रहे हैं। What's wrong with these people? तो उन्होंने कहा यमदूतों के साथ क्या गड़बड़ है, Don't they know? उसको पता नहीं है, She chanted the name Ram. उसने राम का नाम जपा है। These Yamadutas, every time ये यमदूत हर बार they make such mistakes. ये ऐसी गलतियां करते हैं। They came and cut the ropes. तो वो आए और उन्होंने रस्सियां काटी, And the Yamadutas, they're doing the job. They didn't know who these were. तो यमदूतों को पता नहीं था कि ये लोग कौन हैं। We're Vishuddhas. हम विष्णुदूत हैं, We're Yamadutas. हम यमदूत हैं, No one stops us. हमें कोई नहीं रोकता। We take the sinning people हम पापियों को ले जाते हैं and they get punished in hell. और उनको नरक में यातना मिलती है। So we're taking this lady, she's a sinner. तो ये स्त्री पापी है और हम इसे ले जा रहे हैं। She chanted the name Ram. She's free from her sins. विष्णुदूतों ने कहा इसने राम का नाम जपा है इसलिए ये पाप से मुक्त है। We're taking her back to God. हम इसे वापस भगवान के पास ले जा रहे हैं। Now it's in the Yamadutas. We don't accept. हम यमदूतों ने कहा हमें स्वीकार नहीं है। And then they threw the hot coals of hell on the Yamadutas, on the Vishuddhas. उन्होंने विष्णुदूतों ने No. यमदूतों ने विष्णुदूतों के ऊपर आक्रमण किया गरम कोयलों से। But the Vishuddhas, they held out their clothes और विष्णुदूतों ने अपनी ढाल निकाली and created a type of
force field. और एक ऐसा आवरण बनाया So the hot coals bounced off the field and came back to the तो वो जो Yamadut. गर्म अंगारे थे वो विष्णुदूतों को लगने की बजाय उससे टकरा कर वापस यमदूतों की तरफ चले गए। And then the leader of the Yamadutas came forward. तो फिर यमदूतों का जो नेता था वो आगे आया। He was known as the Crusher! The Crusher! उसका नाम था क्रशर, जो भीग सकता है, He could crush anyone. वो मसल सकता है किसी को भी। So the head Vishnuduta came forward. तब विष्णुदूत आगे आए। He was known as Kripalu. तो विष्णुदूतों के जो नेता थे वो आगे आए, उनका नाम कृपालु था। So the Yamadut, with all his force, he took his club and he hit the chest of the Vishnuduta. तो यमदूत के नेता ने अपनी पूरी शक्ति के साथ उनके हृदय पर आक्रमण किया जोर से। विष्णुदूत को कोई फर्क नहीं पड़ा। Vishnuduta took his club. He just tapped. और उन्होंने विष्णुदूत ने हल्की सी चपत लगाई और यमदूत Yamadut started coughing blood. तो खून की उल्टी होने लगी उनको। Yamadut left. यमदूत चले गए। Vishnuduta took the lady and got to Kali. और विष्णुदूत उस स्त्री को श्री भगवान के धाम ले गए। Because she was just chanting the name of Ram. हालांकि वह सिर्फ भगवान राम का नाम जप रही थी। She never, she liked chanting it, she just chanted it. उसको अच्छा लगता था ऐसे नाम लेना और वो जप रही थी। She wasn't chanting it to get rid of her sins. वो अपने पाप से मुक्त होने के लिए नाम नहीं जप रही थी। She didn't think of that. उसने वो सोचा नहीं था। If one chants thinking, oh, I can sin more, let me chant and sin more. यदि कोई इस भावना से जप करता है कि ओ मैं जप कर लेता हूँ फिर मैं पाप कर लूंगा फिर मैं जप कर लूंगा, That's the seventh offense to the holy name. वो 7वां नाम अपराध है। So that should be avoided. तो हमें सबको उसको टालना चाहिए। So these are people she chanted the holy name, just you can say unintentionally, not thinking that it was a holy name. तो वो जो स्त्री थी वो ये शुद्ध नाम को अकस्मात ले रही थी बिना किसी कारण के, यह सोचकर नहीं ले रही थी कि ये भगवान का परम नाम है। But she was in the clearing stage. तो इस तरह से वो एक निरपराध भाव में थी। Clearing stage. क्लियर नामाभास की स्थिति में थी। Now, pure chanting, शुद्ध नाम that can give one a love of Krishna. वो व्यक्ति को भगवान का प्रेम, कृष्ण का प्रेम दे सकती है। And Krishna, he came down in Dwapara Yuga. कृष्ण द्वापर युग में अवतरित हुए। He was in Vrindavan, वो वृंदावन में थे, he was in Mathura, वो मथुरा में थे and in Dwarka. और द्वारका में थे। Not the Dwarka by the airport. The ये जो Dwarka is- एयरपोर्ट के बाजू में द्वारका है, इस द्वारका की बात नहीं हो रही।
But so Delhi, sometimes he came to Delhi also, Hastinapur. भगवान कुछ बार दिल्ली भी पधारे, हस्तिनापुर, because of the Pandavas. पांडवों के कारण। So Pandavas were his friends. पांडव उनके मित्र थे। Sometimes he went to Kurukshetra. कुछ बार वो कुरुक्षेत्र भी गए, Twice. 2 बार, Once for the war, एक बार युद्ध के लिए once for the solar eclipse. और एक बार सूर्य ग्रहण के समय। So Krishna is the supreme personality of Godhead. कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है, But लेकिन the devotees of Vrindavan, वृंदावन में जो भक्त हैं they didn't think like that. वो ऐसे नहीं सोचते थे कि ये भगवान है। They loved Krishna उन्हें वो कृष्ण से प्रेम करते थे for because Krishna was so wonderful. क्योंकि कृष्ण इतने प्यारे थे। When Krishna lifted the Govardhan hill, जब कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया, so then the god then approached Nanda Maharaj. तो गोप सखा जो थे और जो गोप थे उन्होंने नंद महाराज के पास वो गए। Who is your son? कृष्ण कौन है, Tell us. हमको बताओ। Who is your son? आपका पुत्र जो है ये कौन है? Don't tell us he is ordinary. ये मत कहना कि वो एक सामान्य बालक है। We just saw him lift the hill उसने पूरा पर्वत उठा लिया है with one finger और एक उंगली के ऊपर for 7 days. 7 दिन के लिए, And as it wasn't any strange one. और जैसे कि मानो उनके लिए कोई शक्ति का कार्य न हो। So who is your son? तो आपका ये जो पुत्र है ये कौन है? I'd like to know. आप में से कौन जानना चाहेगा? हमें ये जानना है। Close it down, DJ. Close it, DJ. क्या दीजिए? Close it. परिचय कौन था वो बताइए। So then Nanda Maharaj told them, तब नंद महाराज ने उन्हें कहा, at the time of his birth, उसके जन्म के समय I was told by Gargal Muni गर्ग मुनि ने मुझे बताया था that your son has the power of Narayana, कि तुम्हारा जो पुत्र है उसमें नारायण के बराबर शक्ति है, and that he will be a very good fortune for the cowherd men and women. और गोलोक समाज के लिए और उनके भविष्य के लिए ये एक बहुत उत्तम कार्य होगा। So like that he has this power. तो इस तरह उनके पास शक्ति थी। God and was satisfied. गोप जो थे वो थोड़े संतुष्ट हुए, But they never thought, why does he have the power of Narayana? लेकिन उन्होंने ये कभी नहीं सोचा कि इसमें नारायण की शक्ति क्यों है। Because he is Narayana. क्योंकि वो खुद नारायण है। You know, it's like someone borrows the car of someone else. Oh, he has this car. Say a friend has a Mercedes to borrow it. Oh, he has a Mercedes car. तो मानिए आपके मित्र के पास एक मर्सिडीज कार है तो हम कहेंगे ओ उसके पास मर्सिडीज कार है। He has the power of Narayana. तो इस तरह से उसके पास भगवान विष्णु की शक्ति है। But they don't think लेकिन वो ये नहीं सोचते हैं that he is Krishna, कि वो कृष्ण है, that he is Bhagavan.
कि वो भगवान हैं, but they love Krishna. लेकिन वो कृष्ण को प्रेम करते हैं। In Dwarka, द्वारका में, on the Delhi, दिल्ली वाली नहीं, I told about how Hanuman मैंने द्वारका में बताया था, दिल्ली वाली द्वारका में बताया था कि किस तरह हनुमान how Ram offered him a boon, कि किस तरह भगवान राम ने उन्हें एक वरदान दिया, and he asked, तो उसने भगवान हनुमान जी ने पूछा, Ram offered him, तो भगवान राम ने I पूछा, give you the impersonal liberation. मैं तुम्हें निर्विशेष ज्योति में समाने का वरदान दे सकता हूँ। Hanuman said, no. हनुमान जी ने कहा, नहीं नहीं नहीं, You're my master. आप मेरे स्वामी हैं, I'm your servant. मैं आपका दास हूँ, I don't want anything to come in the way of that. तो मैं ये नहीं चाहता कि हमारे बीच में कुछ भी और आए। And then, so there many things he offered Hanuman. तो और फिर कई सारी चीजें भगवान राम ने देनी चाहिए, But Hanuman kept refusing. और हनुमान मना करते गए। So then Hanuman, and then he asked Hanuman, what do you want? फिर आखिरकार भगवान राम ने पूछा, हनुमान तुम क्या चाहते हो? He said, just like your son, तो उन्होंने कहा, जिस तरह आपके पुत्र, like a son hugs his father, जिस तरह एक बेटा अपने पिता को आलिंगन देता है, I would like to one time, as your devotee, hug you. मैं एक बार आपके भक्त के रूप में आपका आलिंगन करना चाहता हूँ। And so, you might have seen that painting of तो आपने वो चित्र Hanuman देखा and होगा Rama embracing each other. कि हनुमान और राम एक दूसरे को आलिंगन कर रहे हैं। So this one visitor in Dwarka, तो द्वारका में एक व्यक्ति ने, he asked, उन्होंने पूछा, why did Hanuman refuse liberation? Why did he want to serve Ram? क्यों हनुमान जी ने मुक्ति भी त्याग दी और क्यों वो भगवान राम की सेवा करना ही चाहते थे? And I tried to explain, और मैंने उन्हें बताने का प्रयास किया Hanuman, कि हनुमान he loved Ram. भगवान से, राम से प्रेम करते हैं, He loved Ram. वो राम को प्यार करते हैं, And he wanted to serve Ram और वो राम की सेवा करना चाहते थे all the time. हर समय। And that's what Bhakti Yoga is. ये भक्ति योग यही है, In the perfectional stage, अपनी पूर्ण अवस्था में our natural love for the Lord स्वाभाविक प्रेम भगवान के प्रति awakens, जागृत होता है, where the devotee loves the Lord, जहाँ पर भक्त भगवान से सिर्फ प्रेम करता है and the Lord loves the devotee. और भगवान भक्त से प्रेम करते हैं। Krishna doesn't have anything to do. भगवान कृष्ण के पास और कुछ भी करने को नहीं है। He has shaktis, his extensions. उनके विस्तार हैं, उनकी शक्तियां हैं। He simply likes to care for his devotees. वो सिर्फ अपने भक्तों का ध्यान रखना पसंद करते हैं। Everyone's looking for a friend. हम हर कोई दोस्त के लिए तलाश में रहता है। Man, a man, a man, a woman. पुरुष पुरुष पुरुष, स्त्री Stray and a woman and a woman. स्त्री Woman and स्त्री man. स्त्री पुरुष। But the actual friend that we can have eternally is Krishna. लेकिन वास्तविक मित्र जो शाश्वत तौर से हमें मिल सकते हैं वो है भगवान श्री कृष्ण। So, Krishna or his extensions, कृष्ण या उनके विस्तार, like Ram, जैसे कि राम,
नरसिम्हदेव, नारायण, that's some different personality in each one. ये कुछ भिन्न भिन्न व्यक्तित्व हैं, But they're all the same person. लेकिन वह एक ही व्यक्ति हैं। The Shastra says that Bhagavan has Ananta Rupa. शास्त्र कहते हैं कि श्री भगवान के अनंत रूप हैं, Ananta नाम है। अनंत नाम है। So whether you worship Krishna as in his extensions or directly, चाहे आप कृष्ण की सीधी सेवा पूजा करें या उनके विस्तार के रूप में करें, at first we just do the devotional service. तो शुरुआत में हम भक्तिमय सेवा करते हैं, Gradually that becomes pure devotion. धीरे धीरे वह शुद्ध भक्ति में परिवर्तित होता है, And from pure devotion that becomes prema bhakti. वो शुद्ध भक्ति के बाद में वो प्रेम भक्ति में परिवर्तित होता है। So to get prema bhakti is not easy. प्रेम भक्ति प्राप्त करना आसान नहीं है। Anybody here would like prema bhakti? आप में से कोई है यहाँ जो प्रेम भक्ति प्राप्त करना चाहता है? But Krishna came in the mode of Radharani. तो कृष्ण राधा रानी के भाव में आए, And that form he is known as Gauranga. और वो जो Gauranga. Gauranga. तो भगवान कृष्ण राधा रानी के भाव में आए और उस स्वरूप का नाम है गौरांगा। And Gauranga appears at Mayapur. और गौरांग महाप्रभु मायापुर में अवतरित हुए। And when he was 9 years old, और जब वो 9 वर्ष की अवस्था के थे, his father decided to give him the Upanayana. तो उनके पिताजी ने उनका उपनयन संस्कार करने का निश्चय किया। So I invited he looked up for auspicious day. तो उन्होंने एक शुभ दिन निकाला। He invited all the relatives and neighbors. और उन्होंने अपने सारे रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को, सबको बुलाया। Some senior Brahmanas came and know the samskar. कुछ वरिष्ठ ब्राह्मण आए यज्ञ करने के लिए। They set up the yajna. उन्होंने यज्ञ की वेदी की स्थापना की। Some musicians came and played music. कुछ गायक भी आए अपने यंत्रों के साथ। Some dancers came and danced. कुछ नर्तक आए और उन्होंने नृत्य किया। Some of the Brahmins chanted auspicious mantras. और कुछ ब्राह्मण शुद्ध मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। So little Vishwambar, little Chaitanya, तो छोटे जो विशंबर थे, छोटे जो चैतन्य महाप्रभु थे, he was getting ready for the samskar. तो वो संस्कार के लिए तैयार हो रहे थे। And they shaved all his hair. और उन्होंने उनके बाल काटे, मुंडन किया। Bathed in the Ganges. और फिर उन्हें गंगा में स्नान कराया। He wore tilak. और तिलक धारण कराया। He wore saffron silk cloth. और उन्होंने भगवा वस्त्र भी धारण किया। Reddish color. Reddish color.
Gerald, लाल रंग का, गेरुआ रंग का, and they gave the Brahmachari rod. और उन्होंने दंडा भी, ब्रह्मचारी दंड भी लिया हाथ में। So it was revisiting the pastime of Vamadev. तो वो वामन देव की के अवतार के स्वरूप उस समय दिखाई दे रहे थे। But they picked up that stick. और जब उन्होंने दंड उठाया, And he remembered that in this Leela, he would deliver the fallen souls. तो उन्हें याद आया कि इस लीला में वो बद्ध जीवों को मुक्त करेंगे। He would give them the Harinam. वो उन्हें हरिनाम देंगे। And that later he would take sannyas. और बाद में फिर वो सन्यास लेंगे। So he was emitting Brahma Tej. तो उस समय उनके शरीर से ब्रह्म तेज निकल रहा था। All the Brahmanas present were very impressed by this. जो सारे ब्राह्मण वहाँ उपस्थित थे वो बहुत ही आश्चर्य में थे और बहुत ज्यादा अद्भुत उस दृश्य को देख रहे थे और विस्मय में थे। They personified sin. जो पाप का रूप था, When they saw Lord Chaitanya, जब पाप ने मनुष्य रूप में भगवान श्री चैतन्य के दर्शन किए, he ran. तो वो भागा वहां से। And Lord Chaitanya roared out. और फिर भगवान चैतन्य ने गर्जना करी, Hare हरि। That was not translated correctly. उसका अनुवाद ठीक से नहीं हुआ। हरि। And Lord Chaitanya took his begging bag. और फिर भगवान चैतन्य ने अपनी जो भिक्षा की झोली थी वो ली। And then he was only 8-9 years old. वो सिर्फ 8-9 साल के थे। Overnight one day, और उपनयन का एक दिन, so I went to the neighbor's house. तो वो अपने पड़ोसियों के घर गए। Viksham Deha, भिक्षाम देह, give me alms. मुझे कुछ दीजिए। So the ladies in the houses, they gave some vegetables. तो जो स्त्रियां थी उन्होंने आकर कुछ सब्जियां दी, कुछ चावल दिए। And they were very happy. और वो बहुत प्रसन्न थी। They smiled. और वो मुस्कुराई। And Lord Chaitanya went from house to house. और फिर भगवान चैतन्य घर से घर दूसरे घर गए। How many of you like Lord Chaitanya to come to your house? आप में से कितने लोग भगवान श्री चैतन्य को अपने घर पर बुलाना पसंद करेंगे? Later, when Lord Chaitanya was a sannyasi, बाद में जब भगवान श्री चैतन्य जब सन्यासी बने, after 24 years of age, 24 साल की आयु के पश्चात he traveled for some years all over India. वो कुछ वर्षों के लिए सारे भारत का उन्होंने भ्रमण किया। He went from Orissa to Andhra Pradesh. वो उड़ीसा से आंध्र प्रदेश, He went to Maharashtra. महाराष्ट्र गए, दक्षिण He भारत went to गए, Gujarat. वो गुजरात गए, He came back to Puri. वो फिर जगन्नाथपुरी पुणे वापस आए, Then he went to Vrindavan. फिर वो वृंदावन गए, Stopping at Varanasi.
वो वाराणसी गए, and प्रयाग गए and then Vrindavan. और फिर वृंदावन गए. I don't know if he came to Delhi. मुझे पता नहीं है शायद वो दिल्ली आए कि नहीं आए. Very close, Vrindavan. वृंदावन से काफी नजदीक है, बहुत पास है. So it said that he would stay on Charlie with one servant. ऐसा कहा जाता है कि वो एक भक्त सहायक के साथ यात्रा करते थे. And he would stay in a different house every night. और हर बार वो किसी अलग घर में रुकते, हर रात को. The wife would pour water on his feet. और जो पत्नी होती वहाँ उस वो गृहिणी होती, वो उनके चरण कमलों पर पानी डालती. The husband would massage the feet. और जो गृहस्थ पति होते वे भगवान श्री चैतन्य के चरण कमलों को का मसाज करते. They feed him. वो उन्हें प्रसाद खिलाते. And he would lecture to the family and all the neighbors. और वो परिवार को और उनके पड़ोसियों को एक कुछ समय के लिए लेक्चर देते, प्रवचन देते. So like this he spent some years. तो इस तरह उन्होंने कुछ वर्ष गुजारे. How many would you like Lord Chaitanya to spend the night with you? तो आप में से कितने भक्त भगवान श्री चैतन्य को चाहेंगे कि वो आपके घर पर एक रात्रि निवास करें? ये तो कोई बहुत ज्यादा उत्साह नजर नहीं आया. So that's why we would encourage you all. तो हम आप सबको प्रोत्साहित करते हैं Chant Hare Krishna. कि आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें. To worship the deities. आप श्री विग्रह की सेवा करें. Practice the ninefold devotional service. नवदा भक्ति का अभ्यास करें. And beautiful temple here, beautiful deities. और यहाँ पर ये सुंदर मंदिर है और बहुत सुंदर श्री विग्रह है. So do some seva. यहाँ कुछ सेवा कीजिए. In this way, और इस तरह make your life perfect. अपने जीवन को सिद्ध कीजिए. Awaken your natural love for Krishna. कृष्ण के लिए आपका जो स्वाभाविक प्राकृतिक प्रेम है उसे जागृत कीजिए. हरि बोल. हरि बोल. Nityananda. Jai Krishna Balaram. जय कृष्ण बलराम. Any questions? कोई प्रश्न है किसी का? Hare Krishna Maharaj. Thank you Maharaj for your wonderful class. Maharaj, I have one question. You explained that we should chant the holy names of Lord. Sometimes it happens we find it very interesting. We like to chant more and more, and some phases are there when we don't feel like chanting at all.
So how can we develop this taste in chanting, and how we can improve that concentration or attention in that? तो प्रभु जी का प्रश्न है कि महाराज, कई बार हम जब जप करते हैं तो काफी रुचि होती है, लेकिन कई बार रुचि नहीं होती है, तो हम किस तरह से अच्छा जप कर सकते हैं, इस विषय में आप बताएं। Sugarcoat your Harinam. अपने हरिनाम को शुगर कोट कीजिए, मीठा हो जाएगा, ऊपर थोड़ी शक्कर लगा लीजिए। Chant Panchatattva mantra first. यदि आप पहले पंचतत्व मंत्र का उच्चारण करते हैं, And your Harinam will be turbocharged. तो आपका जो हरिनाम है वो काफी ज्यादा चार्ज हो जाएगा। Or you can say like putting honey on it. इतना मीठा हो जाएगा जैसे ऊपर शहद लगा दिया हो। Sri Krishna Chaitanya कृष्ण चैतन्य Prabhu Nityananda प्रभो नित्यानंद Sri Advaita Gadadhara श्री अद्वैत गदाधर Sri Gaura Bhakta Vrinda श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। Hare Krishna Hare Krishna हरे कृष्णा Krishna Krishna Hare Hare कृष्णा कृष्णा हरे हरे Hare Rama हरे राम Rama Rama Hare Hare राम राम हरे हरे। The 10 offenses to the holy name. शुद्ध नाम के 10 जो नाम अपराध हैं, Have the effect of taking away our taste for chanting. तो इन 10 नाम अपराधों में वो शक्ति है कि वो हमसे हमारे जप में जो रुचि है उसको छीन सकते हैं। So we have to be very careful तो हमें बहुत ज्यादा सावधान रहना पड़ता है not to commit the 10 offenses to holy name. हम इन 10 नाम अपराधों को न करें। Like it's not offensive to ask the question of a senior devotee. एक वरिष्ठ भक्त को प्रश्न पूछना अपराध नहीं है, Because that's the adhikar we have. क्योंकि वो आपका अधिकार है। But if you challenge or blast a senior devotee, लेकिन यदि आप एक चुनौतीपूर्ण चेतना में या उनका अपमान करते हुए प्रश्न पूछते हैं, all you nonsense, you, हे बदतमीज, who are you to tell you what to do? तुम कौन होते हो ये बताने वाले कि मुझे क्या I करना है? saw you don't even wash your socks every day. मैंने देखा कि तुम तो अपने मोजे भी नहीं धोते हो। That's offensive. ये अपराध है। So we should avoid offenses. तो हमें अपराधों को टालना चाहिए। And also, like, if we are too much attached to material sense gratification, और यदि हमें भौतिक इंद्रिय तृप्ति में बहुत गहरी आसक्ति है, that can sometimes impede the taste. तो वो भी कई बार कुछ बार जो रुचि है नाम में उसको उसमें बाधक बन सकती है। But if we keep on chanting, लेकिन यदि हम जब जारी रखें that can be adjusted easier. तो वो आसानी से उसको हम नियंत्रण में ला सकते हैं। The offenses are a bit harder to adjust. लेकिन जो अपराध हैं उनको नियंत्रण में लाना कठिन है। But this is one of the anarthas. लेकिन ये जो है ये एक अनर्थों में से एक है।
And there's a stage called Anartha Nivritti. और ये जो स्थिति है भक्तिमय सेवा में, ये अनर्थ निवृत्ति के नाम से जानी जाती है। So that's already a couple of steps up. तो और हालांकि भक्त उसमें पहले से ही 2-3 पायदान ऊपर आ चुका है। And when you're able to notice this, it's a good sign. तो वो सक्षम हो रहा है ये देखने में कि वो उसमें ये अनर्थ है, यह प्रगति का सूचक है। So pray to the Lord, chant the Panchatattva mantra. भगवान से प्रार्थना कीजिए और पंचतत्व मंत्र का उच्चारण कीजिए। And chant with full attention. पूरे ध्यान के साथ जप कीजिए। And within a short time, you'll be able to concentrate again. और बहुत कम समय में आप पुनः नाम में रुचि उत्पन्न कर पाएंगे और ध्यान लगा सकेंगे। I don't keep the take the sun on it. I don't keep them from the sun. मैं नहीं चाहता कि भक्त प्रसाद के लिए इंतजार करें। How being all this is somewhere, I can see the individual devotees who have a question on the scene. यदि किसी का कोई व्यक्तिगत प्रश्न का है तो वो महाराज से अलग से पूछ सकता है। आप लोग बाकी लोग प्रसाद पाने के लिए जा सकते हैं। हरि बोल।